Hello everyone. In the last lecture we discussed about the cellular respiration introduction. In that we studied about what is cellular respiration, what are different modes of cellular respiration, that is aerobic, anaerobic and fermentation, advantage and disadvantage of fermentation. Now in this video, in this second lecture of cellular respiration, we will discuss about the different steps of the cellular respiration. First step is glycolysis, that is involved in both aerobic and anaerobic reaction and fermentation. So in this video we will discuss completely about the glycolysis. Glycolysis जैसे कि नाम से ही है, दो वर्ड से बना हुआ है, glyco plus lysis. Glycus is a Greek word, means sweet, and lysis means splitting. It means glycolysis is sweet means sugar, splitting of sugar. A molecule, according in glycolysis, a molecule of glucose is degraded to the 2 molecule of pyruvate, that is a 3 carbon compound. It means क्या है, glycolysis में क्या होगा, एक 6 carbon compound जो है ग्लूकोज वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 carbon compound पायरुवेट में, 2 molecule बनाएगा एक ग्लूकोज molecule. कैसे होगा? थ्रू वेरियस एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. ये सिंगल स्टेप नहीं है कि ग्लूकोज डायरेक्टली पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये थ्रू एक रिएक्शंस की चेन है, उसके थ्रू ये कन्वर्ट होगा. और सारी जो रिएक्शंस है इसमें, ऑल द रिएक्शंस आर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस. ड्यूरिंग दिस सिक्वेंशियल रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस, सम ऑफ फ्री एनर्जी जो कि ग्लाइकोलिसिस के ब्रेकडाउन से निकलेगी वो कंजर्व हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और NADH. ग्लाइकोलिसिस ऑलवेज अकर्स इन साइटोप्लाज्म. There is net production of 2 ATP molecules by substrate level phosphorylation, and other than 2 ATP there is also 2 NADH produced by the reduction of NADP plus by the dehydrogenation reaction. The glycolysis is also called Embden and Meyerhof pathway. वो किस लिए? क्योंकि it was discovered by the scientists Embden and Meyerhof. Now phases of glycolysis. There are 2 phases of glycolysis. Completely glycolysis is a glycolysis जो उसमें 10 reactions होंगे, out of which 10 reactions are divided into 2 phases. First phase is preparatory phase. जैसे कि नाम से ये preparatory means ये preparation के लिए है. तो जो preparatory phase होगा इसमें 2 ATP यूज होंगे. वो 2 ATP किस लिए यूज होंगे? To activate that glucose molecule, and glucose is split into 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल. और ये ग्लूकोज इस प्रिपरेटरी फेज में क्या है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बनेंगे. उसके बाद जब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएंगे उसके बाद देन स्टार्ट होगा सेकेंड फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, दैट इज नेम्ड एज पे ऑफ फेज. कि यहाँ पे जो प्रीपेरेटरी हुआ था ये वापस से पे ऑफ फेज मीन्स जो इसको मिला था वो वापस उसको पे करेगा. तो क्या मिला था यहाँ पे, इसको ATPs मिले हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये इसमें इन ATPs को वापस देगा. वो किस फॉर्म में? फर्स्ट क्या है, जो यहाँ पे जो 2 मॉलिक्यूल्स बने ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट के, वो किसमें उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. और वो कैसे? बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयंस. और यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे दैट आर एक्सेप्टेड बाय NADP प्लस. तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो NADP प्लस ने इन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन को ले लिया, तो इसका रिडक्शन होके इससे क्या बन जाएगा, NADH. और 4 ATP प्रोड्यूस्ड बाय द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. तो इस पे क्या है, 4 ATP निकलेंगे. तो 2 ATP यहाँ यूज हो गए, 4 यहाँ निकले, तो नेट गेन कितना हो जाएगा, 2 ATP. और दोनों जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल हैं बोथ आर कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट्स. तो टोटली क्या है, ये फेजेस होते हैं ग्लाइकोलिसिस के. 5 रिएक्शन प्रेजेंट होती हैं प्रिपेरेटरी फेज में और 5 रिएक्शन प्रेजेंट होती हैं पे ऑफ फेज में. वी विल डिस्कस ऑल दीज रिएक्शंस एंड फेजेस इन डिटेल इन द कमिंग स्लाइड्स. These 5 reactions are of preparatory phase. Glucose is converted into glucose 6-phosphate, that is a irreversible reaction. Glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate, that is reversible reaction. Fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-bisphosphate, that is also irreversible reaction. Fructose 6-phosphate 1,6-bisphosphate is converted into
ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का इनटू ग्लिसरल्डी 3 फॉस्फेट एंड डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बट जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे यूज करता है वो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन को यूज नहीं करता, वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को यूज करता है। दैट्स व्हाई जो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है दैट इज अगेन आइसोमराइज इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और उसके बाद फिर शुरू होता है नेक्स्ट फेज। यहां तक तो था ये प्रिपेरेटरी फेज 5 रिएक्शंस, उसके बाद जब 6 रिएक्शन होगी वहां से शुरू होगा पे ऑफ फेज। ये है पे ऑफ फेज, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना बाय द किसे, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के डिवीजन से। तो 2 मॉलिक्यूल बन गए, एक तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वहीं से बना और दूसरा डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के आइसोमराइजेशन से। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। दैट्स वाई यहाँ इससे पहले कहीं भी आपको यहाँ पे जो ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ नहीं दिखेगा, तो ये 2 किस वजह से लिखा हुआ है, ये 2 है कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अगेन कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसराइड। और ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसराइड है ये हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड होता है, हाईली एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड होता है। दैट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। और यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है और NADP प्लस रिड्यूस हो जाता है NADH में। 1,3 बिस फॉस्फेट अगेन कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लाइसराइड। एज जैसे कि मैंने बताया था ये बहुत हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड है, तो ये अपनी एनर्जी को ब्रेक डाउन के ड्यूरिंग ADP को देगा और वो कन्वर्ट होके एनर्जी को किस फॉर्म में ट्रैप कर लेगी, ATP की फॉर्म में। Then 3 phosphoglycerate is formed. This 3 phosphoglycerate is converted into 2 phosphoglycerate with the help of enzyme phosphoglycerate mutase. Then this 2 phosphoglycerate by the hydrolysis reaction converted into phosphoenol pyruvate. This phosphoenol pyruvate is also a highly energetic compound like 1,3 bis phosphoglycerate. So when it break down it also produce energy and that energy is entrapped in the form of ATP and it get converted into 2 molecules of pyruvate because यहाँ पे सभी के क्या है 2 molecules हैं। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो प्रिपेरेटरी फेज तो एक ही रिएक्शन होंगी और यहाँ पे जो पे ऑफ फेज होगा वहां पे हर एक उसके 2 साइकिल्स होंगे। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज रिएक्शंस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स। अब देखोगे कि इसमें जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं ग्लूकोज को छोड़ के, उसके बाद सारे क्या है फॉस्फेट राइलेटेड है, सबके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 1,3 बिस फॉस्फेट, जो जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे क्या है फॉस्फोराइलेटेड हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है इन फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स की, क्यों है ये फॉस्फोराइलेशन, किस उसमें हेल्प करेगा इनको। तो फर्स्ट क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है that doesn't have the transporter for the phosphorylated sugar, उसके पास phosphorylated sugar को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टर नहीं है। तो इट मीन्स क्या है ग्लूकोज अगर अंदर आती है तो वो बाहर भी जा सकती है, बट अगर एक बार वो फोस्फोराइलेटेड हो जाती है, एक्टिवेटेड हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एटीपी मिलेगी तो वो क्या है फोस्फोराइलेटेड हो जाएगी। तो वो उसके लिए ट्रांसपोर्टर है नहीं मेम्ब्रेन में, तो वो फिर बाहर नहीं लीक कर सकती मेम्ब्रेन से। तो फर्स्ट तो ये है कि जो फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड्स है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जा सकती। सेकेंड है जो फॉस्फोराइल ग्रुप है वो इसेंशियल कंपोनेंट है एनर्जी कंजर्वेशन का। जैसे 2 कंपाउंड्स बताए हैं, इनके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है बाय द ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोएनाइड्रेट बॉन्ड, जैसे कि एटीपी की ब्रेक होता है तो एडीपी निकलता है, तो इसके जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है, जो फॉस्फोएनाइड्रेट बॉन्ड ब्रेक होता है, तो उस टाइम जो एनर्जी निकलती है वो किस में हेल्प करती है, जो फॉस्फोएस्टर्स बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि एटीपी से एनर्जी निकली, यहाँ पे है एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ, यहां से जो एनर्जी निकली तो वो कहाँ पे कंजर्व हुई, वो इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बने वहां पे कंज्यूम हुई, जो यहाँ के फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड से एनर्जी निकली। तो ये क्या है फॉस्फोराइलेशन किसके लिए जरूरी है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। तो इसी की वजह से क्या है, इस एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से ही हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, लाइक 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट। जैसे इनका ब्रेकडाउन होता है फिर वापस से ये एडीपी से एटीपी को बनाते हैं। तो ये क्या है फॉस्फोराइलेशन एनर्जी कंजर्वेशन में भी हेल्प करता है, एनर्जी ट्रैपिंग में भी हेल्प करता है इनकी। थर्ड क्या है
कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है रिजल्टिंग फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो किससे मिलेगी इनको, जैसे ही जो फॉस्फेट ग्रुप है ये, क्योंकि एंजाइम मोस्टली क्या सारी रिएक्शन क्या है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, तो इनके जो फॉस्फेट ग्रुप हैं जैसे ही एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं तो वो लोअर कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। तो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं तो उसकी वजह से जो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ इंक्रीज हो जाती है। और मोस्टली जो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स हैं दैट रिक्वायर Mg2+ फॉर देयर एक्टिविटी, और वो किसकी वजह से है, वो इनकी स्पेसिफिसिटी इंक्रीज हो जाती है उसी की वजह से। So this is the importance of these phosphorylated intermediates. Thanks.